فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد کل من علیہا فان۔ صلاۃ پڑھنا چاہیے۔ کل من علیہا فان۔ اس کائنات میں ہر شے کو فنا ہے۔ جو آیا ہے اس کو جانا ہے، بلکہ مکہ کا دار و مدار ہی فنا ہے۔ جب تک ایک شے فنا نہیں ہوتی دوسری شے بنا نہیں کرتی۔ جب تک ایک شے فنا نہیں ہوتی دوسری شے بنا نہیں کرتی۔ گندم کے خوبصورت دانے خود کو زمین کے سینے میں فنا کرتے ہیں تو لہلاتے ہوئے کھیت تیار ہوتے ہیں۔ آپ کا بھولا بھالا بچپن ہے، معصوم بچپن ہے، خود کو فنا کرتا ہے تو جوانی آتی ہے۔ جوانی خود کو فنا کرتی ہے تو بڑھاپا آتا ہے، اور جب بڑھاپا خود کو فنا کرتا ہے تو پھر موت کی منزل آتی ہے۔ یہ چار انسان کے زمانے ہیں، پہلا ہے بچپن، دوسرا ہے جوانی، تیسرا ہے بڑھاپا اور چوتھا ہے موت۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت۔ اچھا، پہلے کی صفت کیا ہے؟ بات پہ کوئی شے طلب کی تو رونا، کوئی شے مانگی تو رونا۔ اچھا، رونا بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک رونا جو سب کو یاد ہے اور ایک رونا جو کسی کو یاد نہیں۔ جو رونا کسی کو یاد نہیں وہ رونا ہے جب پہلے پہلے آپ اس دنیا میں آئے۔ آپ نے بہن بھائیوں کا پیار دیکھا، فضائیں مہکتی دیکھی، ہوائیں چلتی دیکھی، چاند سورج کی چمک دمک دیکھی، لیکن پھر بھی آپ کا دل اس دنیا میں نہ لگا۔ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ رونا اس بات کا ہے کہ دنیا کو اپنا پہلا رونا یاد نہیں۔ رونا اس بات کا ہے کہ دنیا کو اپنا پہلا رونا یاد نہیں۔ اگر دنیا کو اپنا پہلا رونا یاد ہوتا کبھی دنیا رونے کو برا نہ کہتی۔ جب تک آپ روئے نہیں تھے، ماں بھی اداس، باپ بھی اداس، بہنیں اداس، درد اداس، دائیاں اداس۔ کہاں کیوں اداس ہو؟ کسی نہ بچے گا، کیوں نہیں بچے گا؟ کیونکہ رویا ہی نہیں۔ اور جیسے ہی رونے لگا مبارک باتیں شروع ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کسی طرح کا کیا دلیل ہے کہ رو پڑا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جینا جانتا وہی ہے جو رونا جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جینا جانتا وہی ہے جو رونا جانتا ہے۔ جو رونا نہیں جانتا وہ دنیا میں جینا نہیں جانتا۔ جب آپ روئے تو آپ کو چپ کرانے کے لیے اسلامی وہ ضابطہ حیات تھا، اسلامی وہ ضابطہ حیات تھا جس نے آپ کو دو لوریاں سنائی۔ ایک کا نام ہے اذان اور دوسری کا نام ہے اقامت۔ ایک کان میں اذان دی گئی، دوسری کان میں اقامت دی گئی۔ یہ وہ پہلی اذان و اقامت ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوئی۔ یہ وہ پہلی اذان و اقامت ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوئی۔ ورنہ اذان و اقامت کا کوئی مطلب ہی یہی ہوتا ہے، اقامت ہو جائے اقامت الصلاۃ کہہ کے جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ اور جب ہمیں دنیا سے چلنی ہے، جنازہ گاہ میں رکھا گیا، نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، صرف نماز ہوئی۔ نہ
हुई, सिर्फ नमाज हुई। आए हैं जो अजान भी है, कामत भी है, नमाज नहीं है। गए हैं जो ना अजान है ना कामत है, सिर्फ नमाज है। वो ये आपके पैदा होते ही इस्लामी ने ये मुतनब्बे किया कि आज ही से उस नमाज की इंतजार कर जिसकी अजान और कामत कही है। कही है। मैं आपसे कहना ही चाहता हूँ कि जिंदगी का वक़्त कितना मुख्तसर है। ये जिंदगी का वक़्त इतना मुख्तसर है कि जितना खाना से लेके नमाज का हो सकता है। अच्छा, ये जिंदगी कैसे गुजारी जाए? अजान और खामत और नमाज के बीच का वक़्त अल्लाह ने अता करके हमको ये मुतनब्बे किया कि जितना वो मुकद्दस वक़्त है उतना ही मुकद्दस वक़्त अपनी जिंदगी का रख। अच्छा, एक मौलाना है, मौलाना नसीम अब्बास साहब, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा है कि दुनिया में आना और आके सांस लेना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है, चाहे वो एक सांस लेके करे चाहे वो करोड़ों सांस ले। ये जुर्म इतना बड़ा है दुनिया में आना और आके सांस लेना कि इस जुर्म की सजा सजाए मौत से कम नहीं। कि जुल्म की सजा सजाए मौत से कम है। ये वो रोना है जो जिंदगी को बता देता है, और दूसरा वो रोना है जो सबको याद है, कोई शय लड़की तो रोना, कोई शय नानी तो रोना। अच्छा, सुने पे दुनिया को बुरा नहीं कहते थे, सारे उलमा का इज्मा था कि मासूम है, सारे उलमा का ये इज्मा था कि मासूम है। और जैसे जैसे रोना कम होता गया मासूमियत कम होती गई। पता चला कि रोना मासूमियत की निशानी है, मासूमियत की दलील है। अब ऐसा ना हो जो हमारे छोटे भाई हैं वो घर में जाएं और अपनी माँ के पास रोने लगे तो पूछे क्या हुआ कि मजलिस में सुना था रोने से मासूमियत मिलती है। लेकिन भाइयों याद रखना, मौका मौका होता है, मौके पे रोने पे मासूमियत मिलती है, बेमौका रोने पे नेकियां भी सुननी पड़ती है। बेमौका रोने पे नेकियां भी सुननी पड़ती है। अब सारे कामों को फारिग करके माँ बेचारी सोना चाहे और जो तन्हाई में उसका बच्चा था बहुत ज्यादा रोना चाहे। माँ समझदार, बच्चा ना समझ, समझदार सोना चाहे ना समझ रोना चाहे, तो बताइए काम कैसे चलेगा? तो पहले तो अपने बच्चे को शक्तियाँ दे देके सुनाइए, अल्लाह अल्लाह, रोने वाले अल्लाह हमारे साथ है। और जब कभी नहीं सुनेगा तो अपने बर्थडे का कभी चूहा बना के तो कभी सांप बना के डराएगी। हमें का बेशक रो ले धो ले, जिंदगी का पहला दौर है, बेशक रो ले धो ले, ये हमारा साथ देता है। लेकिन ये बड़ा बेवफा है, छोड़ के ऐसे भागा कि पलट के इसके अंदर देखा। अब आ गया जिंदगी का दूसरा दौर जिसे कहते हैं जवानी। इसकी क्या मिसाल है? रात में गुस्सा, तबीयत में गर्मी, किसी को कोड़ा मार दिया, किसी की छत कूद गया, किसी की दीवार फाड़नी। क्या बात है, वाह। हमने कहा भाई जैसा भी हो ये हमारा साथ दे जाए, लेकिन ये भी बड़ा बेवफा है। हवाले कर गया तीसरे के जिसे कहते हैं बुढ़ापा। इसकी क्या मिसाल है? खबर बढ़ जाती है, इसका भी ले लो उसका भी ले लो। कभी आप खोले के अलमारी खोल के देखे, दुनिया जहाँ का सामान रखेगा, लेकिन कभी किताब की जगह जूता रख देगा, जूते की जगह किताब रख देगा। इसका मतलब ये है कि जमा तो कर लेता है, तरतीब भूल जाता है। हमने कहा भाई ये हमारा साथ दे जाए, लेकिन ये भी बड़ा बेवफा निकला, हवाले कर गया चौथे के। और चौथा ऐसा बेवफा निकला, ऐसा बेवफा निकला, कब्र में साथ, हश्र में साथ, मुमकिन नकीर के और साथ। पहले को किसी ने न कहा बचपन का राह है, दूसरे को किसी ने न कहा जवानी का राह है, तीसरे को किसी ने न कहा बुढ़ापा का राह है, चौथे को सबने कहा मौत चौथे को सबने कहा मौत इस कायनात में हर शय को फना है, मगर वजह को फना नहीं। वजह किसे कहते हैं? चेहरा
चेहरों को वजह इसलिए कहते हैं कि अगर लाश में चेहरा ना हो तो शनाख्त नहीं होती। स्कूल में जब टीचर हमें पढ़ाता है, अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आती तो हम पूछते हैं ना, सर इसकी वजह क्या है। जब उसकी वजह बयान होती है तो शायद से समझ में आ जाती है। तो वजह किसे कहते हैं? जिससे कोई चीज़ पहचानी जाए। चेहरे को वजह इसलिए कहते हैं क्योंकि चेहरे से इंसान पहचाना जाता है, चेहरे से इंसान की शनाख्त होती है। जरा कौन है, फिक्र में आता नहीं, जहन में समाता नहीं, अल्फाज उसका इहाता कर सकते नहीं, ज़बानी वो नहीं है, मकानी वो नहीं है, काबिल तहजीब नहीं है, उसका हुलूल मुमकिन नहीं है, वो लायक इशारा नहीं है, जहन महदूद है, वो लामहदूद है, लामहदूद महदूद में आता नहीं है। तो फिर कैसे पहचाने कि वो कौन है? तो फिर कैसे पहचाने कि उसकी शनाख्त क्या है? बस जिससे अल्लाह पहचाना जाए उसी को वजहुल्लाह कहते हैं। रोज़े अव्वल से ही था। जब जनाब आदम इस दुनिया में आए तो हवा के लिए थे। जब जनाब हाबिल को काबिल ने कत्ल किया तो जनाब हाबिल के पास पहुँचे तो हाबिल खून में डूबे हुए थे। तो हाबिल पे क्रिया किया और काबिल पे लानत भेजी। और जनाब आदम ने हमें बताया कि जब कातिल और मजलूम एक साथ हो तो मजलूम में गिरिया होगा और कातिल पे लानत होगी। हमने अपने बड़ों से सुना है कि इस्लाम में नबियों का रोने का, इस्लाम में नबियों की इबादत का बताया नहीं गया, लेकिन उनके रोने का जरूर बताया गया। सूरह नूह ए नहा पढ़ने वाले, सूरह यूसुफ में जब जनाब याकूब जनाब यूसुफ से जुदा हुए तो रोए, और इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। तो इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। मैं कहूँ जनाब याकूब का तो सिर्फ एक यूसुफ रोया था, तो इतना रोए, जबकि उनको पता था कि यूसुफ जिंदा है, लेकिन तभी उनको जनाब यूसुफ की जुदाई बर्दाश्त ना हुई, तो इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। मैं कहूँ जनाब याकूब का तो सिर्फ एक यूसुफ रोया था, तो इतना रोए। आप ये सोचिए, इमाम हुसैन के तो करबला में 18 यूसुफ शहीद हो गए, उनमें से एक जनाब अब्बास लंबरदार भी थे। जनाब अब्बास का आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि एक मौसमा थी, सहरा में जाती थी, जाने के बाद जो कोई भी आता था उससे कहती थी मेरे गाजी अब्बास की नजर कर दो। एक दिन इत्तेफाक से ये हुआ कि सहरा में जाती है, जाने के बाद जब कोई देर हो जाती है तो अपने मन में सोचती है ए गाजी अब्बास, क्या आज आपकी नजर करने वाला कोई ना आएगा? तभी वहाँ पे एक सवाल आता है और कहता है मौसमा ला मैं तेरी नजर कर दूँ, ए मौसमा ला मैं तेरी नजर कर दूँ। मौसमा नजर का सवाल रखती है, सवाल नजर करता है, और जब सवाल नजर करने के बाद जाने लगता है तो मौसमा पूछती है ए सवाल, अगर तू बुरा न माने तो मैं तुझसे एक बात पूछूं? सवाल कहता है हाँ पूछो। तो मौसमा कहती है आज तक जिसने भी मेरे गाजी अब्बास की नजर की है, जिसने भी नजर की है, उसने अपने दोनों हाथों को उठा के रखा, लेकिन तुमने अपने दोनों हाथों को उठाया नहीं। सवाल कुछ देर तक चुप था, फिर मौसमा कहती है ए सवाल मेरे सवाल का जवाब दे। फिर सवाल कहता है हाथ उठा के वो नजर देगा जिसके हाथ सारे मुंह मैंने अपने दोनों हाथ करबला में अपने भाई की नुसरत के लिए, अल्लाह की वहदानियत के लिए कटा दिए थे। यही वजह है कि जब तक गाजी अब्बास के दोनों बाजू सालिम थे तो किसी की मजाल न हुई कि क़ैमे की तरफ आंख उठा के देखे, लेकिन वही दुश्मन
پاتے تھے. جناب عباس کے دونوں بازو کٹ جانے کے بعد امام حسین اتنے اکیلے ہو گئے کہ بھری کربلا میں ان کی ماں کا نام لیا جا رہا تھا. حضرت خدائی